The online participants, am I audible? All right. So I would presume that you all are the students of Sharda University, is it? Yes, ma'am. Okay. So, good afternoon, everyone, and welcome to the pre-incubation program of DST ITBA Sharda Launchpad, and we call it Ignis 1.0, right? So, just a brief about the team. Sharda Launchpad is headed by Dr. Amit Sehgal, and I think the students of Sharda University would be knowing him pretty better. He is also the professor of SET department, and he is the one who's heading the initiatives at Sharda Launchpad, right? Next to him is Mr. Anurag Pandey, who is a serial entrepreneur and is currently working as CEO with the DSKIT via Sharda Launchpad. And after him, as the CEO manager with Sharda Launch, and I come with the coordinator Ayub with us, who's the assistant manager, has been in the past 3 years. A couple of more people. So this program we are having on the POC stage and maybe the pre-prototype stage. So what we are going to do in this program is that we are going to help you out, scale up your idea, validate it, and help you with the making of the business plan or the business model canvas and how to pitch in. So there's going to be the speakers coming in from the industry and the academia who's going to take up sessions along with the core team. And this is how we are going to conduct it for the coming 3 months. The participants here are also clear about it. Next, I would like to, Jeanette, just take over and give them a brief about it, please. Thank you. So, No, shall I join? After Zana, Participants, welcome you to the Ignis 1.2. This is an initiative by Sharda Launchpad DST ITBI. Actually, we had scheduled the orientation program way in 11th Feb. We had scheduled it. Due to ongoing exams, you were not able to join that program. So again, the purpose of this orientation program is just align you towards the purpose of this particular initiative, what we call Ignis program, igniting new ideas and startups. Basically, in a pre-incubation program, what we will do, we'll start from the idea stage, just a raw idea on all the participants whosoever have registered. Having a series of mentoring sessions, which involves from idea stage, how we can refine those ideas and how we can assist in building the business models and preparing those ideas for a good venture, for a successful venture, raise the funds and prepare for the grant, initial grant, what we are offering. During the next couple of sessions, probably we'll be having 2 sessions for the entire week. One will be scheduled on Tuesday, which will be an offline mode, mandatory for all the participants who have registered for the Ignis program, followed by a compulsory session on Saturday, most probably on Saturday or Friday. We'll be joined by the external mentors who will guide you, through the array of series of lectures, which will be having hands-on activities. We'll be giving you some assessments. Currently, parallelly, we have done one orientation program for those participants who are not from the Sharda, who are the outsiders, and we have got a good response for the Ignis. Almost more than 65 persons have registered for the Ignis program.
So it's a huge response, overwhelming response, which we didn't expected, that too on an early stage. What we did in an earlier session that we had an introduction. First of all, we had an introduction of every participants, which we'll be doing in this session as well. All of you have to introduce yourself and tell us about your idea. It will be a more interactive session. Followed by the next session will be like you'll be giving some assignments about some market research. What are the competitive landscapes of your ideas? Uh, I would encourage everyone to be more interactive. Just asking the questions like where you feel what's required from our side to assist you. Okay. So I'll invite our director, Professor, to have a brief about the Ignis program and structure, what we expect to do in the couple of months ahead. Okay. ठीक है. Thank you so much, Zunaid. So first of all, addressing to you guys as who are physically present, plus those who joined virtually. So first of all, this is our sessions. This is for the new and a single Ignis till now. So we are here to give you a brief idea about what is this program overall looks like, okay, and the structure around it, okay. So before we go further, let's start with an introduction with each. Do you have any idea that you want a brief highlight about your education qualification or any achievement if you have? So three things again about you, okay, about your idea, and then about your achievement, either a career achievement or any outside achievement. You will be getting 20 to 30 seconds for this. So let's start one by one. So just before this start, Yeah. I would like to make one thing very clear to all the participants that be on time, right? And be restricted with the time and don't wait. There's going to be a penalty for it. Join in. Recording in progress. Okay, I think now it's visible. Okay. Just make it straight. Okay, yeah. Okay, so one by one, let's start introducing. Okay, so first let's go with the virtual candidates. So who wants to come first? The one who have not attended the previous sessions. Okay, they can go and introduce themselves one by one. So please switch on your camera, guys. We wanted to interact with you for 20 seconds of your introduction. So let's start with Shobit Srivastava. You there? Okay. Muskan Chadda, you there? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, Okay. Hi, Muskan. yes, Okay. my name is Muskan Chadda, and I am a PhD scholar at Sharda University. I'm doing my PhD in nutrition and dietetics, and my idea is to develop a symbiotic drink. So we have already developed that, and we have got patent published for that also. And further, we wanted to go forward with the commercialization of that product. It is probiotic rich, it is low in fat and antioxidant rich as well, and it is a combination of coffee and seeds as well. And coming to the recognitions, I have won Anveshan Awards also for 25,000, which were in the international level, and in even in the national like in the state level also, I got first prize, and there I got the third prize. Hello, hello.
Okay, so I see that you have registered earlier also. Why you are Yes, joining yes, late? sir. Sir, actually, I was hospitalized earlier. अच्छा, okay, okay, no problem. Mm. ठीक है. So next, let's go next. Shobhit Srivastava, now you want to go? Okay, no problem. Let's start with you guys. Okay, till the time they are ready. So one by one, as you guys have a right. Okay, introduce yourself for 20 seconds. Okay, so let's start from here. This meeting is being recorded. Myself, Joaquin Nabil from Sharjah itself. Currently pursuing bachelor's in computer science and engineering. So my idea is about traveling app. I'm currently developing a traveling app for the Jammu and Kashmir, knowing about the perks and the benefits that the tourism in Jammu and Kashmir is producing and to the overall contribution to the Indian economy. So I am developing a one solution traveling app for the tourism where I will cater all the traveling services in just one app. One app and one solution for the all travel needs. From customization options of the budget in the traveling to all the cab bookings, car rentals, carpooling options, miscellaneous services just like gondola services, river rafting, and connecting local market through one app so that all the customers can get access to the local market from one app. No middleman in between, just one app and all the services will be provided. Any achievement that you have in this progress? Currently, I am in the prototype phase of my app, and I have conducted all the market research for the app in the particular zone. ठीक है. So I have completed all the prototype for the app, and this is the ठीक है. Thank you. What's your name? Shokin Nabi. Ashokin Nabi. Shokin Nabi. Thank you. Thank you so much. So just like that, we have to introduce ourselves, give our achievements, and then brief about idea and which stage you are. है ना? Yeah. Good morning, I'm Yash Kumar Chaudhary, and I'm currently a student of Sharjah University, BTech second year. And currently, we don't have any kind of achievement with our idea, but it's kind of an initial stage of our idea. And we are building AR/VR solution for education, especially. But the scope of AR/VR technology way more beyond the education. Like example, metaverse and other things that we should work on. And we are building this technology. We are currently in very Building initial stages stage. of it. And Great, great. Thank you. Hello everyone, my name is Nidhi Chaudhary and currently I'm in the final year of my graduation here in Sharjah University. So basically my idea is to build an app for the visually impaired people, including blind and partially blind and colorblind people, so as to help them in their day-to-day tasks with the help of VR technology. So I'll be developing an eyewear with the integrated actually with the app, so that with the object detection, describe surroundings, and PDF detection, currency detection. These are going to be some of the features for the visually impaired people. So just talking about my achievements, I have participated in hackathons like Smartica Hackathon, even in the Bharat Shiksha Hackathon that I had recently in Bharat Expo. And yeah, this is fun work. Okay. Great. Thank you. My name is Ayush Kati. I'm currently pursuing BTech from Sharjah University itself. And my app idea is basically in today's fast-paced world, we are going more towards convenience rather looking at the nutrition labels or all that. So what my plan is that we'll scan the label and we'll make the nutrition label easier for the consumer to consume so that he can make a good dietary choices based on that. So this is my idea, and currently it's in prototype. I have not accomplished my goal yet. Okay. ठीक है, no problem. Thank you. Let's start. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद फरहान है। मैं शारजा यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और करंटली मैं फिनटेक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये उसका बेस होगा और वो आईपीओ रिव्यू वगैरह पे डिटेलिंग में जाएंगे और ये फाइनेंशियल अवेयरनेस वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। Okay. कितना डेवलप किया आपने? अभी मैं वेबसाइट भी डेवलप कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है। Okay. Okay. Thank you. Me and Daniel both are working on the same Achha, okay. project, and we have started this idea of implants. We are going into the medical sector of the society, and we want to cater. We are actually going on
B2B firms. So we are going to cater the implants and we'll actually distribute them towards the clinics and hospitals. Have you made? Will link the manufacturer straight to the end user, cutting the middleman and all the costs. And right now we are in the web development, we are developing the website and we have conducted a market research. And about the achievements, I won't say it as an achievement, but we have got commitment from some hospitals and clinics. So they are ready and they have a budget to work with. Okay. ठीक है, next. Good afternoon, everyone. I'm Manish from BTech CSE AIML. So currently I'm in second year. So basically my project is about medical assistant. I will make a medical assistant which name is Pharmacist. So Pharmacist is an AI driven system that makes medicine easier, faster and easier. It works mainly in two ways. One is 24/7 self-service medicine kiosks. So that this system is like an ATM for medicines. This kiosk allows people to get urgent medicine at any time. Suppose हमारे जैसे इंडिया में होता है कि रात 10:30 बजे के बाद हमारा मेडिसिन शॉप, फार्मेसी शॉप वगैरह सब कुछ, तो फिर ऐसे हो सकता है कि अर्जेंट किसी कुछ मेडिसिन किसी रात को जरूरत है किसी का, वो ऐसे अगर मतलब ऑनलाइन पे अगर बुक भी होता है वो चीज़ 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ नहीं आता, तो फिर मैंने ऐसे सोचा था। किस चीज़ पे अभी आपका बना दिया प्रोटोटाइप है? अच्छा ठीक है। आपकी पर्सनल क्या अचीवमेंट्स है ये बताइए। अचीवमेंट सर, आई एम डूइंग इंटर्नशिप। ओके। और सर मैंने मतलब इस पे और एक जो सोचा था, ये ऐसे मतलब सेल्फ सर्विस का एक है, ये चीज़ हम लोग हॉस्पिटल में भी यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जैसे मतलब डॉक्टर से आने के बाद। ठीक है, थोड़ा हमें ब्रीफ में ही जानना है आइडिया, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानना आपसे। 20 सेकंड्स यूटिलाइज करना था। थैंक यू सो मच। आप बताइए। Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Gaurav. I did my schooling from CBSE and I just recently graduated from the Maharashtra Institute of Technology, Rohini. And my achievement is also I did 2 internships in this technical field of web development, and my idea is based on financial term, which is a trading platform, which I just want to combine the crypto asset and the normal users which existing in the normal market. I just combine both of them and created a fund in which user can expose in the normal and as well as a crypto market. So we just want to explore, we just want to learn, and user also can create our platform and get investment opportunity from our side. Okay. ठीक है, thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Archit Singh and he is my teammate Abdul Samad. Okay. We are currently studying in the BTech CSE student in the second year in cybersecurity. And our ID is based on the technological related news and mass communication journalism. Currently, we just build a website. We don't have any personal achievements as so far. Okay, okay. So where do you want to work? मतलब क्या एरिया? सर वो टेकवुकी सर एक मेरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम लोग टेकवुकी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टेक न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने ऐसा देखा है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लाइक टेक रिलेटेड कोई न्यूज़ चैनल नहीं है जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करे. सो वी आर वर्किंग ऑन. अच्छा अच्छा, यू आर मेकिंग ऑन अ न्यूज़ चैनल. हाँ, लाइक दैट. ओके, डोमेन स्पेसिफिक. ठीक है. Anyone else left in the call? Divita, would you like to? Divita has already joined. I don't know. Okay. Why Divita has joined. So Divita, this call is not primarily for you. Vaibhav Saini. Yeah, Vaibhav, you want to go? Hello, good afternoon, everyone. Am I audible? ठीक है. Hello. Joining facing some difficulty, but ठीक है, जैसे join कर लेगी we'll get it done. अच्छा, Vaibhav, you want to go next for your introduction? Yes, sir. Am I audible, sir? So 20 seconds, you just tell me about a brief about your business and about you. Sure, sir. Good afternoon, everyone. I am Vaibhav Saini, pursuing BTech in Computer Science Engineering from Sharda University. I am working on LabXR,
an AR/VR based classroom setup along with my partner Yash Kumar Chaudhary. He's present there. Our aim is to enhance practical learning by creating Vibhav, can you immersive switch on your camera, and please? Yeah, please switch on your camera while you speak. Okay. Yeah. You continue. Go ahead. Please continue. Please continue. Vibhav, you can continue. Sorry, sir, I'm getting network errors. ठीक है क्या इज ही स्पीकिंग सो नेक्स्ट कर लेते हैं मे बी सम नेटवर्क इश्यूज प्रगति कैन यू ओके प्रगति इज आल्सो नॉट हियर दोनों कोई नेटवर्क इश्यूज है चलिए कोई बात नहीं मेक देम जॉइन बाद में ठीक है सो ठीक है अभी इंग्लिश 1.0 इज ऑलरेडी started first of all so now you guys are joining with the same pace 2 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं इंग्लिश के इंग्लिश क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को ब्रीफ बता देता हूँ so जैसे when we start our business right so we start with a thought process basically we start with a thought that thought becomes an idea when we refine it to a some you know कि इसी एरिया में काम करना है थोड़ा ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को ना अगर बाद में है तो दे चेयर्स कम करो पर ये भी लेगा ठीक है सर ठीक है सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट इंग्लिश 1.0 so English 1.0 is already started by the way okay it's going on what is the plan is कि जैसे I told you कि start with a thought process thought जो भी हमारा है उसको हमने एक आइडिया में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें लगा कि हम इस एरिया में काम कर सकते हैं हम सब एरिया में तो नहीं काम कर सकते बट हमें लगता है कि चलो some idea is very close to our heart so we can begin working with this so that's how you come up with an idea बट स्टिल नॉट क्लियर है ना स्टिल नॉट क्लियर मे भी आगे चल के कुछ चेंजेस हो जाए या टीम मेंबर्स न्यू ज्वाइन हो जाए या कॉम्पिटिटिव मार्केट बदल जाए आपका तो इसीलिए वी हैव मेड दिस इंग्लिश प्रोग्राम इसमें हम हर एक वीक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ ठीक है वी आर डिस्कसिंग जैसे कि अभी लास्ट सेशन वाज अबाउट कॉम्पिटिटर एनालिसिस सो आपके जो भी कॉम्पिटिटर थे उस आइडिया के हिसाब से उसको पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है उसको डिफरेंट टूल्स के साथ हमने देखा जैसे गूगल ट्रेंड्स के साथ देखा हमने चैट जीपीटी के साथ देखा हमने गूगल सर्च करके देखा कि कैसे कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उसको एक बार कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद देयर विल बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि हम बिजनेस मॉडल बनाना सीखेंगे आगे चल के डिज़ाइन थिंकिंग समझेंगे कि अपने यूजर्स के थॉट प्रोसेस को कैसे समझना है देयर आर टेक्निक्स बेसिकली क्योंकि बिजनेस अभी से तो नहीं हो रहा है बिजनेस काफ़ी सालों से हो रहा है तो हमने डेवलप किया है कि कुछ चीज़ें बड़ी सिंपलिस्टिक एक पाथवे अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम जल्दी अपने आइडिया को स्ट्रक्चर कर पाएंगे उसका एक बिजनेस मॉडल बना पाएंगे उसका एक टारगेट ऑडियंस डिफाइन कर पाएंगे राइट अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वी कैन एक्चुअली गो इनटू अ एक्चुअल बिजनेस कैटेगरी फिर आपको हम सपोर्ट दे सकते हैं राइट then we can give you different kind of grant support we can give you different kind of partnership support collaboration support plus funding also funding in the terms कि आप कितना इस 3 महीने में आप अपने आप को कितना डेवलप कर लेते हो जिस भी स्टेज पे आप अपने आप को निकालोगे इस 3 महीने के बाद उसके अकॉर्डिंग वी विल गिव यू द रेलिवेंट सुटेबिलिटी ऑफ फंड्स ठीक है कुछ लोग जो आइडिया को रिफाइन करके विल मेक अ गुड पिच डेक आउट ऑफ इट ठीक है दे विल बी पिच्ड टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स दे विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू ग्रांट्स वैल्यू जो कि 0 से शुरू होता है अगर आपके पास बस एक अच्छा आइडिया ही है तो गवर्नमेंट गिव्स यू ग्रांट ठीक है ग्रांट इज अ फ्री मनी यू डोंट हैव टू रिटर्न इट बट इट कम्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रैकिंग कि आप क्या यूटिलाइज कर रहे हो ठीक है उसके बाद अगर आप और मैच्योर स्टेज पे आ जाते हो तो जिसमें आपका क्लाइंट आ जाए लेट्स सपोज ऑल्दो हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे क्लाइंट का बट अगर आप लोग कुछ तरीके से समझ जाओ पहले कि यू नो हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन
and if you crack first order somehow, so then you will go for funding. We will give you access to angel or VC fund maybe, depends आप कितना अच्छे से उसको tackle कर लेते हो. So this program is designed the same structure. One class per week will be happening for 1 hour, joined by different experts from industry. Similarly, follow-up session will be planned on Tuesdays. अगर मान लीजिए आपका मिस हो गया सैटरडे या फ्राइडे जब भी क्लास होगी, अगर वो मिस होता है तो नेक्स्ट कॉल विल कम एट ट्यूसडे, सो दैट यू कैन रीजॉइन एंड अंडरस्टैंड कि कोई क्वेश्चन आंसर्स थे आपके तो उसको आप क्लियर आउट कर सकते हो. सेम एक्सपर्ट्स होंगे और आप उससे पूछ सकते हो. ठीक है. तो मेरा तो हाँ यस. सो बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल, ये पूरा सेशन जो बनाया गया है वो थ्योरेटिकल नहीं है, बिल्कुल भी पूरा प्रैक्टिकल है. इसमें हमने सेशन से पहले आपको एक टास्क देने मेल पे. टास्क बहुत सिंपल होगा, मतलब आपको अपने ही बिजनेस के ऊपर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे. उस 4 क्वेश्चंस को आप जो भी एआई टूल्स है, जो भी अपने फ्रेंड्स हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, उसमें डिस्कस करोगे पहले, एंड देन यू कम अप विद द आंसर्स. वो आप हमें भेजोगे थ्रू द सबमिशन ऑन अ गूगल फॉर्म. उसके बेसिस पे जब हमारा सेशन होगा सैटरडे को, तो उस पर डिस्कशन होगा कि आइडिया आपने जो भेजा है वो कितना फीजिबल है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं. उसी पे टूल्स डिस्कशन होगा. आप में से किसी के एक आइडिया को लेके हम उसको बनाएंगे बेस. तो मंथ के एंड में वी आर नॉट ट्रैकिंग कि आपकी अटेंडेंस कितनी है, वी आर ट्रैकिंग कि आपका जो टास्क कंप्लीशन रेट है वो कितना है. तो इट्स अ सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट दैट मैटर्स एट द एंड. ठीक है. सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेशन आओगे तो नेटवर्किंग बढ़ेगी, आप स्पीकर्स को जान पाओगे. क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर जो आएंगे सैटरडे में, ही इज़ अ बिग यूएक्स डिज़ाइनर कमिंग फ्रॉम 15 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग. तो कल को आप अपने फील्ड में कभी फंसोगे, यू नो, थिंक कि यहाँ पर हम अपने ऑडियंस को समझे कैसे. मैंने आइडिया तो बना दिया है, बट मुझे नहीं पता कि किसको एग्जैक्टली किसको बेचना है, कैसे बेचना है. तो समझ लीजिए डेफिनेटली देयर आर एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री. हम उनको अलाइन करने जा रहे हैं हर सेशन वाइज. सेशन अटेंड करना इसलिए ज़रूरी है टू गेट द लाइव एक्सपोजर. प्लस देयर विल बी पीपल ज्वाइनिंग ऑनलाइन, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई थिंक यू विल बी ऑल्सो ज्वाइनिंग ऑनलाइन. फिजिकल सेशन विल बी कंडक्टिंग वंस अ वाइल फॉर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, बट मोस्टली हमारे जो सेशंस होंगे दैट विल बी ऑनलाइन विद द एक्सपर्ट्स. ठीक है. तो अभी पहले मैं जानना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर सीरियस अबाउट टेकिंग योर आइडिया टू अ बिजनेस? Raise your hands. Everyone is it, huh? Good, very nice. And how many of you are ready to take challenges in this path? Challenges as in complete reversal of an idea. मान लो करने गए थे B, अब बोल रहे Z करो, कर लोगे? Adaptability है? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल. ठीक है. That's very important because we never know कि you know what stage this idea can last. कुछ लोग को लगता है हम बहुत revolutionary idea लेके आए, बट ऑब्वियसली जो लोग बिजनेस कर रहे हो जानते हैं कि रेवोल्यूशन आइडिया में नहीं है, आपकी प्रोसेस में. आप कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हो उसमें. तो इन्वॉल्व कैसे करोगे? देयर इज अ टीम इन्वॉल्व इन दिस, देयर इज एन ऑपरेशंस, देयर इज अ डिजाइन थिंकिंग इन्वॉल्व. बहुत सारी चीज़ें. एमबीए में तो 2-2 साल लोग बिता रहे हैं सब चीज़ें को पढ़ने के लिए, बट आपको एक छोटा हैक दिया जा रहा है. ठीक है. दिस कोर्स इज जस्ट अ हैक. अदरवाइज गो एंड स्टडी एमबीए, यू विल बी बेटर बिजनेसमैन देन, you will understand the business better. ये एमबी वाले बताएंगे आपको. So basically, हाँ, कितने लोग बिजनेसमैन होते हैं. So basically this is again one of our tries to get into this game. आप लोग को वापस इस गेम में लाया जा सके, और इसी के लिए इसको पूरा सेशन जो है वो एक्टिविटी वाइज प्लान किया गया है. ठीक है. So जैसे आप लोग के सेक्टर्स बहुत अलग अलग है, मैं देख रहा था अभी. प्लस और जो आपके साथ 30 और लोग हैं उनका भी सेक्टर बहुत अलग है. कुछ लोग एडटेक से हैं, कुछ लोग डीप टेक से हैं, कुछ लोग फिनटेक से करना चाह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ट्रैवल में हैं. ठीक है. कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी हैं इस कॉल पे जो बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसिंग ऑडियंस रखती हैं अपने, बट दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. मे बी सम ऑफ देम आर इन प्रिंटिंग एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री. सो बहुत सारी डाइवर्सिटी इस ग्रुप में. तो सबसे अच्छा क्या होगा कि जब आप इस ग्रुप में एंटर करोगे तो आप उनके भी आइडियाज़ को देख पाओगे कि हाउ अनदर फाउंडर इज स्ट्रगलिंग थ्रू दैट. क्योंकि अभी तो हमें लगता है कि हमें बस इफ़ वी सक्सेस द वर्ल्ड विल बी यू नो टर्न अराउंड, दूसरा बन जाएगा. ऐसा नहीं होगा. राइट. सबके पास अपने ड्रीम्स हैं. अगर इस पूरे कॉल में हम 20-25 लोग भी बैठे हैं तो 25 डिफरेंट आइडियाज़ हैं यहाँ पे. हो सकता है 25 के 25 आइडिया या तो यूनिकॉर्न बेस्ड आइडियाज़ हो, या फिर हो सकता है मिलियनियर आइडियाज़ हो, या फिर हो सकता है लैक्स में ही रहे. वो डिपेंड किस पे करता है? हु इट्स अ फाउंडर ओनली. फाउंडर कैसे पुश करता है ना.
और किस पे डिपेंड करता है? अभी तो मैं आप ही से बात कर रहा हूँ ना, आई डोंट नो बाहर जाके आप क्या करोगे. So it's better कि when you are acting as a founder, you learn the best out of it from the best experts. ठीक है? So I will be personally teaching this course because I'm also entrepreneur. मैंने अपने पास में ventures किए हुए हैं. I have seen the exit, I have seen the acquisition, I have seen multiple ideas जिसको मैंने turn out किया एक business में. मैंने help भी किया कुछ businesses को during this process to do that. Plus Amit sir will be joining. Amit sir has a lot of experience in mentoring diverse audience. तो अमित सर का बेसिकली आपके साथ काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहेगा टू गिव यू एन इनसाइट ओवर योर आइडिया. प्लस वानी मैम विल बी देयर. वानी मैम इज हैंडलिंग टू ऑफ द ग्रांट्स हियर. तो वानी मैम को आइडिया कि हाउ टू गाइड यू टू गेट थ्रू द ग्रांट्स एंड अदर स्कीम्स. प्लस जुनेद सर विल बी कॉलिंग यू टू गिव यू फीडबैक्स एंड ऑल. बट बी अटेंटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. जैसा वानी मैम ने कहा कि द ओनली वन थिंग राइट नाउ आई वांट इज your discipline. ठीक है? That's it. Be on time, completing the task. That's very very important, right? अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, then I'll hand over to अमित सर. आप लोगों को क्या लगता है मतलब एक अगर बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप खोलना है, मान लो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं कोई, ठीक है, उनको क्या 3 चीज़ ऐसी चाहिए, ठीक है, जो कि कंप्यूटर ग्रेजुएट्स को मैं जैसे दूंगा ही विल मेक अ सक्सेसफुल स्टार्टअप. ये मैंने नहीं बोला, ये VC फर्म्स जो है वाई कम्बिनेटर वहाँ से आया हुआ है. तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ऐसी क्या 3 चीज़ें हैं जो एक टेक फाउंडर के पास होनी चाहिए जिससे कि आइडिया जो है वो बिजनेस बन सकता है, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस. बताओ. टीम, फंडिंग एंड प्रॉपर टेक सपोर्ट. ओके, ठीक है. और they should be well aware about the technical stacks that are required to develop the app or टेक्निकल स्किल्स. और पैशन, एग्जीक्यूशन पैशन नहीं चाहिए था आपको? चाहिए था ना. और बताओ सर. मोडिफिकेशन. मोडिफिकेशन इज जस्ट लाइक कि अगर आपको आइडिया को मोल्ड करना है. मोडिफिकेशन ये क्या टर्म है? खुद ही बना दिया. ठीक है. मोडिफिकेशन, क्रिएटिविटी, अडैप्टेबिलिटी. और coming aspect technological future possibility. Planning for that, better planning for that. Okay. Future planning. हाँ. Strategy planning. आप बताओ. और स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए आइडिया में. मेरे हिसाब से आइडिया बड़ा नहीं, आइडिया स्ट्रांग होना चाहिए. सब कुछ ही जरूरी है ना. तो 3 चीज़ कैसे बताएं हम टॉप? अब मैं बताता हूँ 3 चीज़ क्या टॉप है एक टेक फाउंडर के लिए. फर्स्ट द लैपटॉप, सेकंड द वाईफाई, थर्ड द टाइम that he can devote to the laptop and Wi-Fi. That's it. क्योंकि हर एक नॉलेज फ्री अवेलेबल है. फर्स्ट ऑफ ऑल पैशन भी फ्री अवेलेबल है. मोटिवेशन टॉक रोज सुबह उठ के एक सक्सेस स्टोरी सुन लो, बहुत पैशन आ जाएगा अंदर. ठीक है. और क्या क्या बोल रहे थे? प्लानिंग, स्ट्रैटेजी. टीम बोला टीम किससे बोला? टीम बोला था ना. टीम की भी क्या जरूरत है बताओ, जब AI टूल्स हैं आपके टीम मेंबर्स. आजकल ना सिर्फ 3 चीज़ चाहिए. देखो वही गलती आती है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट स्टार्टअप. हमें लगता है कि बोल रहे थे वही है एक्चुअली, बट जब आप डेप्थ जाके देखते हो तो लैपटॉप चाहिए, वाईफाई चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? टाइम चाहिए. जो आप अनडिस्ट्रप्टेड टाइम जो उसको दो. ये टेक फाउंडर्स के लिए. अब सबके लिए नहीं है. कुछ लोग जो अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिए 3 अलग चीज़ें हो सकती है इंपॉर्टेंट, बट बहुत ही बेसिक ग्राउंड लेवल चीज़ें होगी, राइट. बाकी सब चीज़ें आप फिगर आउट कर सकते हो. जनरली मैंने देखा है स्टार्टअप में लोग अपने आइडियाज़ को टाइम ही नहीं देते. उनको लगता है कि कभी कभी तो अपने आप से ख्याल आएगा और वो फंडिंग में बदल जाएगा. दैट्स वेरी स्टेज टू सी इतना भी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगा, राइट. सो कैसे वर्क करना ये इस डिसिप्लिन कोर्स में आपको पता चलता है कि हाउ टू कैरी फॉरवर्ड. ठीक है. नाउ हैंड ओवर टू अमित सर. वो आपको थोड़ा और इंट्रिकेट बताएंगे कि व्हाट दिस जर्नी विल बी फॉर यू. I think we've got a pretty clear idea about what this program is. So it's not a course. It does not have a syllabus. So अगर हम इसकी structure की बात करें, we can provide you because जब भी हम कोई program create करते हैं, so we create a structure just to brainstorm, just to identify what kind of resources will be required, and so that we can timely arrange all those resources. तो इसका भी structure एक formative बना हुआ है, but then it is not something like your routine academic courses because we are talking about something which is highly dynamic. Right, things which are changing every day and night. So ऐसे चीज़ों के लिए there is no fixed
structured program or curriculum. But one thing is obviously very clear that there is a structured path which is to be followed, a process which is to be followed. Right? So one very common thing which I always point out is सब लोग startups की failure ratio के ऊपर बात करते हैं. But do people really understand that why it is happening? Okay. And how many of those who failed, they were at what stage? So जब हम एक जर्नी की बात करते हैं किसी भी स्टार्टअप की, so they begin, they accelerate at a very high speed, and then they at a much higher speed they come down, and then they get stuck in a situation which is called as valley of death. So how do you come out of that valley of death? That decides success of a startup. वो एक स्टेज हमेशा आती ही आती है, right? And those who are capable, those who have planned well, those who have prepared themselves well to come out of that valley, वो उससे बाहर निकलने के लिए बहुत एनर्जी लगती है. जो टाइम की बात हो रही है, so that is the stage जहाँ पर आपने कितना टाइम अपने आइडिया को, अपने बिजनेस को समझने में, उसको प्लान करने में लगाया है, so that will give you energy to come out of that valley. So उसको समझना और उसके प्लानिंग करना is very important. So most of this entire program is based upon all these experiences that we have collected, and कहाँ पर किस स्टेज पे क्या challenges आते हैं, क्या problems आती हैं, so that we give you a roadmap. अगर आप उसको follow करते हो, so you will be strong enough to come out of such situations. So it's all based upon the practical things. So we will be giving you जो structure हमने बनाया है program का. So those all are the different steps, different stages that you have to take throughout your journey as an entrepreneur. Okay. So weekly this is the will tell you that this is the first step which you do, this is the second, this is the third step, and you have to implement based on your idea. There might be situations एक महीने के बाद आपको लगेगा कि इस आइडिया में इसका मैं जा ही नहीं पाऊँ. राइट, सो ठीक है, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, उसका कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लिया, मैंने कॉम्पिटिटर्स में निकाल लिया, आई हैव आइडेंटिफाइड कि इसमें 5-6 ऑलरेडी रनिंग बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस चल रहे हैं ये नहीं चल रहे हैं, बट देन यू ट्राई टू फाइंड आउट कि ओके नाउ हाउ डू आई पोजीशन माय सेल्फ इन दिस मार्केट. वो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, राइट? तो आपको एंट्री बैरियर नहीं मिल रहा है, आपको बहुत हेवी कंपटीशन मिल रहा है, आपको प्राइस मार्जिन में चैलेंज आ रहा है. सो देयर विल बी सिचुएशन जो अडैप्टेबिलिटी की बात होगी, व्हेन यू विल फील ओके इसको चेंज करना चाहिए. मैं तो B2B मॉडल में जा रहा था, बट B2B में तो मार्जिन ही नहीं है, मुझे प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा. आई डोंट हैव सो मेनी रिसोर्सेज कि मैं इतना लॉसेस के ऊपर काम कर पाऊँ 6 महीने के लिए. सो लेट अस गो टू B2C या D2C मार्केट, राइट, जहाँ पर मुझे मार्जिन ज़्यादा मिलेगा, मुझे वाइडर ऑडियंस मिलेगी. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू अंडरस्टैंड. अगर आप बिजनेस के बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को समझते हो, अपनी मार्केट को समझते हो, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को समझते हो, सो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि अल्टीमेटली होने क्या वाला है, राइट? और जिस टेक फाउंडर्स की बात करें तो बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर, सो अनदर मेजर चैलेंज, ये इनफैक्ट सबसे बड़ा चैलेंज यहीं पर आता है टेक फाउंडर्स के साथ, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर कस्टमर. प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, बट ये पता नहीं कि उसका करना क्या है. तो जब अगर आप किसी बिजनेस पर्सन से बात करें, दोस्त हु आर ऑलरेडी रनिंग देयर बिजनेसेस, या अगर किसी की फैमिली से, बहुत लोग एक बिजनेस चला रहे हैं, उसमें नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या बैंक में जाओगे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और आई नीड सम फंड्स, मुझे लोन चाहिए, कुछ अमाउंट चाहिए, सो दे विल आस्क यू फॉर अ रिपोर्ट, राइट? एंड दिस डिफरेंशिएट्स अ बिजनेस. जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, सब लोगों ने बनाए होंगे, दोस्त वाले फाइनली पर्टिकुलरली आप पूरा सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाते हो, लास्ट में जाकर उसकी रिपोर्ट बनाते हो, पूरा सेमेस्टर लैब में एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, लास्ट में 5 दिन बैठ के फाइल बना के सबमिट कर देते हो. बिजनेस में सब बिल्कुल रिवर्स होता है. रिपोर्ट बनाते हो, जब भी आप कहीं जाओगे सबसे पहले आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगेगा, DPR मांगेगा, ये रिपोर्ट लेकर आओ, करना क्या चाहते हो, हैव यू आइडेंटिफाइड योर मार्केट, हैव यू अंडरस्टूड योर मार्केट, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए आपने प्लानिंग कर लिया, कहाँ से वो रिसोर्स आएंगे, कितने फंड्स आपके पास हैं, कितना आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर एक्सपेंडिचर होगा, कहाँ से आपका रेवेन्यू आएगा, कितने टाइम में रेवेन्यू आ जाएगा, कैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा. तो ये सारी चीज़ें वेल कैलकुलेटेड होती है पहले. तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो DPR आपसे बैंक या इन्वेस्टर या कोई भी पर्सन मांगेगा, यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. तो यहीं पे सारी स्टोरी चेंज हो जाती है. अगर आपने वो प्रोसेस बैकग्राउंड वर्क सारा कर लिया एंड यू हैव योर एंटायर एनालिसिस डन, देन यू एंटर टू द बिजनेस, बिकॉज अब आपको पता है कि मुझे कहाँ पे क्या करना है, किस टाइम पर मेरी क्या रिक्वायरमेंट होगी, किस टाइम पर क्या चैलेंजेस होंगे, एंड हाउ डू आई ओवरकम दोस चैलेंजेस, राइट? एवरीथिंग इज प्लान्ड. फिर इंप्लीमेंटेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है. तो सर प्रोग्राम कौन से कोड है जो आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, 4-5 घंटे में पूरे सॉफ्टवेयर बन जाते हैं. If you know the tools, if you understand the technology, सब चीज़ें अवेलेबल ऑनलाइन, राइट? मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो सब अभी AI इतना पावरफुल हो गया है, वो सब करके दे देते हैं. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जॉब्स खत्म हो गई, डिजाइनर्स की जॉब्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई, डेवलपर्स की भी खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में. एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड.
टेक्नोलॉजी बिल्ड करना इज वन पार्ट. इनिशियली इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट कि मुझे प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद जाके उसका जो बिजनेस एस्पेक्ट होता है दैट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. सो दैट इज द थिंग व्हिच वी वांट टू टेक यू थ्रू. और पिछले 3 साल में हमने यहाँ पे जो भी काम किए, जो भी हमारी सक्सेस स्टोरीज रही हैं, अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो खैर दे हैव टेकन टाइम, बहुत टाइम लगाया, काफ़ी साल लगाए, एंड देन फाइनली दे हैव रीच्ड टू स्टेज जहाँ पर उन्होंने 16 CR का फंड रेज किया है फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर, एंड दे आर रनिंग अ कंपनी ऑफ मोर देन 100 crores. 4 करोड़ 5 करोड़ रेवेन्यू वाले तो बहुत हैं हमारे साथ. तो उसका रीजन ये है कि दे हैव गॉन थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, दे हैव अंडरस्टूड देयर मार्केट, एंड देन दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर बिजनेस. अब फिर उन्होंने उसको ग्रो किया within from our incubator only. अगर मैं 1.5 साल की भी बात करूँ तो we have disbursed around 4 CR of funds to the startups, जो सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं. Availability of funds is not a problem. The problem is with the quality of business idea, right? And कितना well आप उसको plan करते हो, कितना successfully आप उसको implement कर पाते हो. So that is the challenge. So this is the objective of this particular program. We prepare you for the future challenges, so that ये जो failure rate होता है, जो इंडिया के अंदर 90% बोला जाता है, more than 90% बोला जाता है, और हमारे केस में success rate is more than 70%. Right? So it's just reverse story. और उसका रीजन ये है कि we make our startups understand कि ultimately करना क्या है, right? So if you follow the procedures timely, अगर आप उन चीज़ों को करोगे, time is very critical even with us, because हम लोग back to back बहुत सारी चीज़ों में involved रहते हैं. There are many startups who are already connected हैं, उनको हमें daily basis पे time देना होता है. Then there are different sessions, there are online sessions, नए applications keep on coming for different grants, funding के लिए investors के साथ meeting होती है. So we cannot go like जो आपके routine programs होते हैं, 3 बजे के टाइम में चलो 3:30 बजे start करें, तो हमारे पास उतना margin नहीं होता है, right? So, try to plan out the things, so properly करो, follow the instructions which are given to you, or try to implement it on weekly basis. जो भी challenges होंगे we will be solving them. तो जो Tuesday वाला समय बताया आपने, so every Tuesday we try to help you understand. जैसे आपको एक task दिया गया, if you are not clear कि इसमें exactly करना क्या है, या आपने कुछ किया, you are facing some problems. So on Tuesdays we try to understand your problems and help you understand the things better. Right? And then Saturdays so it's like more like a master class, जहाँ पर experts will be sharing their experiences and their knowledge with you, because that is also required. Okay, so that's how we are going to work at. ठीक है. Any questions? ओके, सो एक बार मैं ब्रीफली आप लोग को स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि कैसे प्रोग्राम चलेगा. ठीक है. सो वीक 1 जो आप मिस कर चुके हो ऑलरेडी, वीक 2 से शुरू होगा. इट्स ऑल अबाउट प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग. इसमें ट्रेनिंग एंड ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्व है. और जूम करना, ठीक है. So week 1 was mainly about identifying your competitors, potential competitors. So we'll give you those details so that you can work on it. So basically an activity. And I think shared folder वाला we are implementing. कौन सा? Shared folder, जो भी ये काम करेंगे, जो भी activities, documents prepare करेंगे. So make a folder. आप अपने सारे documentation उसके अंदर आप update करते रहो and share it with us, so that we can check it, we can give you feedback, और उसी का updated version आप उसमें रख पाओ. ठीक है. तो उसी तरीके से आपका अगला सेशन होगा मार्केट रिसर्च के ऊपर. आपको क्या मार्केट रिसर्च के सेशन की क्या क्या चीज़ें आपको मार्केट में चाहिए होती हैं, जैसे आप सर्वे कंडक्ट करना जान जाओगे, कस्टमर के इंटरव्यूज़ लेना जान जाओगे ताकि कस्टमर समझ पाओ आप पहले. उसके बाद कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होगा, जिसमें आप कॉम्पिटिटर्स के मैप बनाना, उनके मार्केट को समझना, उनका इंडस्ट्री स्पेसिफिक होना, ये सब समझ पाओगे. मंथ 1 के एंड में आप सीख जाओगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे डिफाइन करते हैं. 10 कस्टमर्स रिव्यू लेना, इंटरव्यू लेना सीख जाओगे. मार्केट रिसर्च बनाना सीख जाओगे. 3 कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप आइडेंटिफाई कर लोगे. एंड आप एटलीस्ट 2 नेटवर्किंग सेशन में पार्टिसिपेट भी कर लोगे. सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट. ये मंथ 2 का टारगेट होगा आपका बिजनेस मॉडल डेवलप करना, जिसमें आपका बिजनेस मॉडल कैनवस बनाया जाएगा. ठीक है. आपने बनाए भी होंगे शायद. किसी ने बनाया बिजनेस मॉडल कैनवस अभी तक? हाँ, आपने बनाया. ओके. तो आपको अब रियल में सिखाया जाएगा कैसे बनाते हैं. ठीक है. उसके ऊपर वर्कशॉप होगी. इस वीक 6 विल बी वैल्यू प्रोपोजिशन एंड कस्टमर सेगमेंटेशन, जिसमें आपको टारगेट ऑडियंस को टारगेट डिफाइन करना सिखाया जाएगा, एनालाइज करना सिखाया जाएगा डिफरेंट वैल्यू प्रोपोजिशंस, जिसके हिसाब से आप आगे कस्टमर्स को सर्व करोगे. नेक्स्ट विल बी फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आप रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करोगे.
मैं कोशिश करूंगा ये सब चीज़ें आपको AI और जो ट्रेंडिंग टूल्स है उसी से सिखाऊं ताकि आप आगे यूज़ कर सको इन सब चीज़ों को। लास्ट विल बी फॉर द मंथ 2 विल बी लीगल कॉम्प्लाइंस। आपके स्टार्टअप में क्या टैक्स बेनिफिट्स हो सकते हैं या फिर IP कॉम्प्लाइंस हो सकता है, उसकी एक चेकलिस्ट, और आप बेसिक समझ जाओगे कि अगर मान लो कभी 2 स्टार्टअप फाउंडर्स में लड़ाई होती है, राइट, जो कि होगी भी अगर 2-3 हो गए तो कैसे रिजॉल्व करोगे, राइट, सबसे बड़ा टास्क आ जाता है। तो हमने भी देखे, हम भी आपको बताएंगे कैसे किया जा सकता है, कितने पैसे आपको देने, कितने उसको। So month 2 will be all about business canvas submission, customer segmentation analysis, financial report, projected financial model, research and identify 3 funding sources at legal and compliance. 3 will be most about your validation and pitch session. तो ये practical तरीका है basically जिसमें आप कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी बनाते कैसे, तो सब कुछ तो बन गया, बट पहला कस्टमर कैसे आएगा वो सही तरीके से कैसे बनाते हैं। वैसे तो चल के लोग कोई भी सोचता है कि आई कैन गेट अ गो मार्केट स्ट्रेटजी, बट ऐसा नहीं है, उसके पीछे स्ट्रेटजी होती है, वो आप सीखो इसमें क्या होती है। देन दे विल इन पिच से अपनी स्टोरी बतानी आनी चाहिए, क्योंकि वही आपको बतानी है आज के बाद से फिर, है ना। उसके बाद स्टेक होल्डर्स एंड कम्युनिटी, स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन एंड फंड रेजिंग सिखाएंगे आपको कि आपको फंड रेजिंग का बेसिक्स पता चलेगा कि फंड रेजिंग एक्चुअली में स्टोरी बताने से या पिच देने से नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड हाउ यू नो द इंडस्ट्री, तो वो आप देखोगे इसमें। एंड फाइनल डे विल बी पिच डे, आप अपने स्टार्टअप आइडिया को पिच करोगे, ठीक है, सबके सामने, सो दैट यू विल बी रेडी फॉर द डे। एंड हमारे पास भी अगर हमारे पास कोई फंड एक्सेस है तो उससे आपको कितना लाइन हम कर सकते हैं। End of this month, third month, week 12, you will be getting that opportunity. So that's the basic of what will be there for you in all the 3 months. Sessions are like that. And अभी सबसे important है, अभी आपको ये follow करना, आपको visible है नहीं? Okay. So ये शारदा लॉन्चपैड का LinkedIn प्रोफाइल है। तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या और इवेंट्स हो चुके हैं, और ज़्यादा पीछे नहीं, 1 वीक पहले 2 वीक पहले के इवेंट्स हैं। सो सर एक हाईलाइट देना चाहूँगी लॉन्च वीडियो को, जिन्होंने ये अटेंड करा था लॉन्च वीडियो, उसमें आप ही के साथ के एक स्टूडेंट्स थे। सो देयर वाज वन गेस्ट स्पीकर हु वाज फ्रॉम द VC फाउंडर, सो दे गॉट connected to him, and now that VC founder is one of the most prospective investor in that startup. So this is the power of networking sessions and events like that. जो भी स्पीकर सेशंस में आएंगे, गेट देयर डिटेल्स एंड ट्राई टू कनेक्ट देम ऑन लिंक्डइन। उनको पता है कि वो शारदा इवेंट में आए एज अ स्पीकर और आप एज अ शारदा स्टूडेंट उनको अप्रोच करते हो, सो दे डेफिनेटली बी कनेक्टेड एंड देन देयर एंटायर नेटवर्क इज ओपन एक्सेसिबल टू यू। व्हेनेवर देयर इज एनी चैलेंज यू कैन रीच आउट टू देम, यू नेवर नो वी फाउंड इस लेवल पे कनेक्टेड अबाउट फंक्शंस होंगे, और जैसे 1.0 इग्निस 1.0 आया है, ऐसे करके और भी प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे, सब आपको यहीं पे अपडेट मिल जाएगा। तो कीप फॉलोइंग अस। हमारा एक और सेगमेंट है स्टार्टअप क्लिनिक का, उसके बारे में हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपको बता देंगे। सो दैट्स इट प्रीटी मच। किसी को कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क मी नाउ। सैटरडे डिपेंड करता है, जैसे वर्किंग सैटरडे है वी ट्राई कि फिजिकल हो जाए, एंड देन बेसिकली एक्सटर्नल स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा। सो एक्सटर्नल सेशन थोड़ा थोड़ा देंगे मेजरली ऑनलाइन मोड में, बट ये वाला जो सेशन होगा दिस विल ट्राई टू कीप इट फिजिकल सो दैट यू कैन इंटरैक्ट विद यू वन टू वन, आपकी जो भी कॉलेज डिस्कशन, एंड देन इन बिटवीन द ग्रुप आप लोग भी यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, सी यू कैन डू सम नेटवर्किंग विद इन द ग्रुप। ठीक है, ट्यूसडे का क्या हाँ, ट्यूसडे विल ट्राई कि ऑफलाइन इसको रखें, फॉलोअप सेशन। फिर जो ऑफलाइन होगा, जो क्लास जो छोड़ के आए हैं उसकी सर, उसकी क्या उसकी अटेंडेंस मिलेगी? अटेंडेंस तो मिल जाएगी, तभी तो अटेंडेंस डिपार्टमेंट जो उसको शीट पे 2 परसेंट है बेसिकली सैटरडे स्पीकर सेशन होगा, सैटरडे सेशन मिक्स बोथ ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ, सैटरडे ऑनलाइन, ट्यूसडे ऑफलाइन आप लोग के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। In case if there's any change, you guys will be intimated well in advance whether it's going to be offline or not. Just keep following the mail afterwards. आज के बाद से Sir is the person who's going to be very regularly
आपको ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। ग्रुप में भी जो भी अपडेट्स है प्लीज उसको फॉलो कीजिए। आई डोंट हैव टू कॉल कि आज आपका सेशन है, आप आ जाइए या ज्वाइन कीजिए। Don't be restricted to these sessions. ये sessions तो specific task activities के लिए है, but we are available either here or talk to, right? And whenever you have anything to discuss, you can reach out to us. ठीक है। तो जैसे Anyone else? सो आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, राइट? यहाँ पे और प्रोफेशनल्स भी हैं आपके साथ साथ जो लोग सेशन अटेंड करेंगे। इसीलिए आप लोग के लिए मैंने ट्यूसडे थोड़ा फिजिकल रखा हुआ है, ताकि आप लोग खुद 1-on-1 कर सकते हैं आके, और कुछ डाउट्स है तो आप क्लियरिफाई कर सकते हैं। Wanted to do it Saturday because आपकी क्लासेस नहीं होती हैं, but then बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए जो are not living locally, उनके लिए Saturday आना difficult था। एक 3-3 बजे करते हैं, एक क्लास की बात है, इतना तो एडजस्ट करो, सब आगे को लेके चलो अटेंडेंस में। 30-35% तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट देता ही है। देखो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है या आपका बिजनेस आइडिया, वो डिसाइड कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये सीख लोगे आगे होगा नहीं है। हाँ, फिल इट, एवरीवन हैज टू फिल इट। तो जनरली जैसे आप लोग में से कुछ लोग आगे रियलाइज करोगे कि आपको इंटर्नशिप अगर आगे चल के जैसे इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना है किसी स्टार्टअप फाउंडर को, या मतलब किसी पेड इंटर्नशिप का पार्ट बनना है, तो वो भी आप इसी इंग्लिश के दौरान आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि और भी स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे जो काफ़ी मैच्योर है इस इंडस्ट्री में, तो आप उनके साथ एसोसिएट हो सकते हो। बट देखो मैंने इतना रियलाइज़ किया कि अगर स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट अगर बहुत ही पंचुअल होकर चीज़ों को अटेंड करता है, चाहे मान लीजिए आपको कहीं मीटिंग आ गई या आपको कहीं बाहर जाना पड़े, तब भी यू डिवोट दैट 1 आवर स्पेसिफिकली, रुक जाओ या डिले कर दो कि मुझे अटेंड करना ही है। नहीं तो नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टअप कैसे बनेगा? आप खुद सोचो, यहाँ पे इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में जहाँ पे फाउंडर्स आर फाइटिंग फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ अटेंशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर, उसमें आप अगर 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो वीक में अपने आइडिया को, तो हाउ इट विल गो? इट विल नॉट गो एट ऑल, है ना? तो सो जस्ट इट, आप डिसाइड कर लो आज के बाद से कैसे आपको करना है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू फर्दर, बी एक्टिव ऑन योर मेल आईडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, आई गेस, है ना? मेल से ही कम्युनिकेशन हो रहा है ना जुनैद? मेल से कम्युनिकेशन अभी इनिशियली हो रहा है, ठीक है? किसी को अब अपने आइडिया के ऊपर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, देन वी विल ओवर दिस सेशन, फिर हम खत्म करते हैं। हाँ, कोई डाउट नहीं? अच्छा, कंप्यूटर साइंस, और अच्छा कौन से आप कंप्यूटर साइंस से हो ना? और कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? हाँ, आप अपना CSC से ही हैं? कितने लोग CSC आपके? आप BBA से हो? अच्छा, और अच्छा आप मैम लाइफ साइंस से, अच्छा, और आप किससे? CSC से कितने लोग हैं? एक बार हाथ रेज करना। ओह, काफ़ी CSC से। हाँ, जो अटेंडेंस की बात करते हैं, देयर इज अ प्रोविजन फॉर अटेंडेंस, जैसे आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स और बाकी चीज़ों के लिए अटेंडेंस मिलती है। सिमिलरली इफ यू आर इन्वॉल्वड इन एनी स्टार्टअप एक्टिविटी, उसके लिए भी देयर इज अ प्रोविजन, यू कैन गेट रिलैक्सेशन इन अटेंडेंस। लेकिन आपको टाइमली इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट को, if there is any document required, so we provide you, right? So we will get you, जैसे this is a pre-inclusion program, हम इसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ करवा देंगे। मेजर थिंग है कि आप टाइमली इन्फॉर्म करो, ऐसा नहीं है कि कल लास्ट डेट है एडमिशन की, एडमिट कार्ड बनने के और एक दिन पहले आप एप्लीकेशन लेके घूम रहे हो, तो मतलब once you are a part of this program, you inform to your HOD, right? Because they it is known to everyone. कर देना अभी, हाँ करना पड़ेगा और क्या, ठीक है? ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, आज के लिए इनसाइट ये, जैसे हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस स्टार्टअप कॉल्ड परप्लेक्सिटी? कितने लोग जानते हैं? AI वाले जो हैं, हाँ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले जानते हैं, बाकी लोग भी तो जानते होंगे, जानते हैं, राइट? सो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट? क्या आइडिया था पता है आप लोगों को? नहीं? सो AI के डोमेन में, जहाँ पे AI टूल को ट्रेन करने के लिए आपको पता है लाखों से ऊपर रुपए लगते हैं, उसको डेटा फीड करवाना पड़ता है, उसको सेमीकंडक्टर्स देने पड़ता है। परप्लेक्सिटी के जो फाउंडर हैं, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने जो आइडिया बनाया, राइट, ही वॉज नॉट टेकी फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको कोई टेक का आइडिया नहीं था, ठीक है? ना ही वो बहुत बड़े इंजीनियर थे कोई। ही हैड वर्क विद डिफरेंट कंपनीज। उन्होंने क्या देखा कि जितने AI टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, किसी में कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे ChatGPT में क्या मिसिंग है, एक फैक्टर ले लिया, बट वो चीज़ें लामा में अच्छी है, फेसबुक का जो मॉडल है उसमें अच्छी है,
कुछ चीज़ें दिल्ली में अच्छी हैं, दिल्ली इमेज बनाता है ऑब्वियसली, बाकी इमेज नहीं बनाते, कुछ वीडियोज अच्छी बना देते हैं, जैसे सो रहा है। तो उसने क्या किया कि इन सबको इंटीग्रेट कर दिया। इसने बोला कि जैसी प्रॉम्प्ट आएगा उस प्रॉम्प्ट को हम उससे लिंक कर देंगे जिसका भी प्रॉम्प्ट होगा। अगर चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट है तो चैट जीपीटी पे गया, अगर दिल्ली का प्रॉम्प्ट है तो दिल्ली पे चला गया। और इसको ऑटोमेट कैसे किया इसने, एक ऑनलाइन ऑटोमेशन टूल से, ठीक है, जो कि वो बता नहीं रहा है, बट मोस्टली जैपियर हो सकता है क्योंकि जैपियर ऑनलाइन ऑटोमेशन करता है। तो सिंपल सा एक मॉडल बनाया, उसको टेस्ट रन पे उतारा, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब वो कॉम्पिटिटर बन चुका है गूगल का, एंड बहुत सारे डॉलर्स इन्वेस्ट हो चुके हैं उसमें। वन ऑफ द 6 टॉप AI स्टार्टअप्स में आ चुका है वो। तो आप देख रहे हो, इट्स जस्ट एन आइडिया दैट ही वाज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं तो एक रिसर्च स्कॉलर हूँ बेसिकली, जो ये करना चाहता था। उसका जो पूरा परप्लेक्सिटी प्लेटफॉर्म है वो रिसर्च के आर्टिकल जैसा बेस्ड है। अगर आप कुछ सर्च करते हो तो आंसर रिसर्च के आर्टिकल की तरह देता है, विद ऑल रेफरेंसेस, साइटेशंस। सो इट्स जस्ट ही हैज टेकन दिस एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट, और उसने उसको बनाया और मार्केट में उतारा, एंड नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, यू सी। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप इस नेटवर्क में हो कि नहीं। ही वॉज वेरी वेल कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क्स, चैट जीपीटी के फाउंडर से वॉज कनेक्टेड समहाउ। तो उसको आइडिया लगता रहा कि कैसे चलती है चीज़ें, क्या होता है इसमें, एंड देन ही मेड इट। एंड अब तो स्टोरी यूट्यूब पे है पूरी, आप जाके कभी भी देख सकते हो उनके स्टोरी को कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ही टोल्ड एवरीथिंग, राइट। सो इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे इसमें ओवरऑल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द कॉल। Okay, I hope it was a valuable session for you as well. So Divita has joined till last. Okay. Is there anyone else who wants? हाँ. आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा, उसमें क्वेश्चनियर है, 4-5 क्वेश्चंस होंगे रिगार्डिंग मार्केट सर्वे। तो आपको उसको फिल करना है, आपको 100% हर एक का आंसर होगा, तो आप उसको रिवर्ट कर लेना। देखो शेयर फोल्डर वाला वो लिंक ले लो सबसे, जिसमें दे कीप ऑन ऐडिंग देयर डॉक्यूमेंट्स। हाँ कोई नहीं, वो गूगल फॉर्म में हम कर देंगे उसको इनिशिएट। हाँ वो अपने जो भी आपके फोल्डर्स होंगे वो खुद ही अपडेट कर देंगे उसमें, आप गूगल फॉर्म में हम एक लिंक बना, उसमें परमिशन लिंक बना देंगे ना, सबमिट योर लिंक करके, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आंसर तो सिमिलर ही होगा ना। तो as a team or submit करो। as a team. Actually, we expected everyone to come as a team of minimum 2 members because that is required. Preferably of different expertise. अगर एक टेक और एक बिजनेस का हो, so that is very good. वो difficult है। अभी उतनी आपकी मतलब विदिन द कैंपस इतनी नेटवर्क नहीं है, आप तो ग्लोबल नेटवर्किंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग वाला भी इसको नहीं जानता है, एसबीएस वाला इंजीनियरिंग वाले को नहीं जानता है, कॉमन इवेंट्स में कोई जाता नहीं है। ठीक है guys, any questions from online? Vaibhav? No questions? No, ठीक है, sir, thank you so nothing.